I welcome you all to this very special class, and we are going to cover some very important chapters of class 11th NCERT, that is Fundamentals of Physical Geography. Students, many students have this doubt, ma'am, which NCERT are we covering? So we are covering this 11th NCERT, okay? काफ़ी बच्चों को डाउट होता है ना कौन सी NCERT पढ़ रहे हैं, तो हम ये NCERT पढ़ रहे हैं 11th की Fundamentals of Physical Geography. This is the NCERT that we are studying, class 11th, okay? And this NCERT is very important for your prelims. आपके prelims के लिए ये NCERT काफ़ी important है, okay? So we are going to cover today in today's class the major ocean relief, and we are going to cover atmospheric circulation. These are the two topics that we are going to focus on, okay? So first let us start with the ocean relief. सबसे पहले ocean relief से start कर देते हैं, फिर हम atmospheric circulation पर आकर उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है? And class notes will be uploaded on the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Okay, तो Telegram channel का नाम है, the name of the Telegram channel is Simplifying UPSC with Ease. This is the name. ठीक है, so you can go to the channel and download your notes and resources after the class. Okay, चलो. So first I'll give you a small little detail about the ocean relief. सबसे पहले ocean relief को समझ लेते हैं कि what is ocean relief. Okay, so let's start with the ocean relief. When we talk about ocean relief, what is it? What is the meaning of ocean relief? ये ocean relief का मतलब क्या होता है? Anybody in the comment section who can tell me what is the basic meaning? अगर आपको basic किसी को समझाना है, you want to explain it in a very easy language to someone, what is ocean relief then? How will you explain what is ocean relief in basic language, easy language? We can say that these are the physical features of the ocean. ठीक है, हम इसको physical feature बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं. Ocean relief can be the various physical features of the ocean, that can be ocean relief, okay? And we know that when we talk about ocean relief, it is largely due to, किस वजह से ये ओशन रिलीफ के फीचर्स बनते हैं? बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ द इरोजनल एक्टिविटीज़, और यू कैन से बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल प्रोसेसेस ऑफ नेचर. ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज प्रोसेसेस द ओशन रिलीफ कैन बी फॉर्म्ड. यू कैन सी द ओशन रिलीफ एज वेल. ठीक है, इन सभी प्रोसेस की वजह से आप ओशन रिलीफ को देख सकते हो. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक इंटरैक्शंस, वॉल्केनिक इंटरैक्शंस, इरोजनल एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शंस, ऑल्सो डिपोजिशनल इंटरैक्शंस, यू कैन सी ओशन रिलीव्स. And we know that ocean relief, it is divided into major and minor reliefs. ये दो parts में divide होता है ocean relief. First part is known as the major relief. पहले part को हम बोलते हैं major relief. Second part is known as the minor relief. Second part को हम क्या बोलते हैं? Minor relief बोलते हैं. These are the two parts in which ocean relief is divided for studying. हमारे सहूलियत के लिए, पढ़ने के लिए हम ओशन रिलीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मेजर और माइनर. ठीक है, यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजर रिलीफ से. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेजर रिलीफ्स. ओके, मेजर ओशन रिलीफ फीचर्स. तो व्हेन वी टॉक अबाउट मेजर रिलीफ्स, दीज आर दोज रिलीफ्स विच हैव मैक्सिमम, यू कैन से फीचर्स और मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेजर रिलीफ इज डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स. मेजर रिलीफ जो है वो 4 डिविजन्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट डिवीजन इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. पहला जो डिवीजन है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं. ठीक है, सेकेंड टाइप इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल स्लोप. इट इज द सेकेंड टाइप, द कॉन्टिनेंटल स्लोप. थर्ड टाइप इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल राइज. इट इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल राइज. And the fourth type is known as the deep sea plain. This is the fourth type, the deep sea plain, or it is also known as the abyssal plain. इसी को हम abyssal plain भी कहते हैं. So these are the 4 major divisions of the major relief of ocean bed, or you can say ocean relief system. ये आपके 4 major division हो जाते हैं. ठीक है, अब बात आती है what is minor ocean relief. These are the major ones. Okay, but which one are the minor? So over here you can write, यहाँ पर आप लिख सकते हो the minor relief
are, first we have ridges, ठीक है, then we have small oceanic hills, then we have atolls, ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कोरल रीफ्स. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स विच इज़ गोइंग ऑन इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के जितने भी ओशनिक रीजन हैं वहाँ पर कोरल रीफ्स जो हैं उनको ब्लीच कर रहे हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट. इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ओनली. द ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज. देन वी हैव फ्रैक्चर जोन्स, हमारे पास दरारें भी होती हैं, ठीक है, ट्रेंचेस भी होते हैं. वी हैव ट्रेंचेस ऑल्सो, फ्रैक्चर्स आर लाइक ट्रेंचेस ओनली, राइट. वी हैव ट्रेंचेस ऑल्सो. देन वी हैव कैनियंस ऑल्सो, हमारे पास द ग्रेट कैनियन भी है, ठीक है, विच यू मस्ट हैव हर्ड इन द न्यूज़ एज वेल. देन वी हैव गायुत्स ऑल्सो, यहाँ पर आप लिख सकते हो हमारे पास गायुत्स भी होते हैं, ठीक है. वी हैव सी माउंट्स एज वेल. In the previous I guess 2-3 class back we have also created a diagram of these relief systems. हमने इस रिलीज सिस्टम का डायग्राम भी बनाया था. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ ओशन रिलीफ सिस्टम. ओके, ये है आपका बेसिक डायग्राम. हियर वी हैव दिस वन इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ये तो आपका कॉन्टिनेंटल रीजन हो गया. दिस इज द कॉन्टिनेंटल रीजन. नाउ हियर वी हैव कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस ओवर दिस, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे this is the continental shelf. And when we talk about the continental shelf, write it down that it is a gently sloping seaward extension of continent. Seaward extension of the continent. आप देखोगे this is the continent and it is extending towards the sea in a slope format. So it is known as continental shelf. ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है जब सी की तरफ एक्सटेंड करता है तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन जाता है. एंड हियर द एक्सटेंडेड मार्जिन्स, दीज आर द एक्सटेंडेड मार्जिन्स. दीज एक्सटेंडेड मार्जिन्स ऑफ ईच कॉन्टिनेंट, दे आर ऑक्यूपाइड बाय शैलो सी. सो ओवर हियर द सी इज नोन एज शैलो सी, जो ज़्यादा डीप ना हो, शैलो सी, ठीक है. एंड वी हैव शैलो गल्फ्स एज वेल, ठीक है. तो दिस रीजन इज नोन एज शैलो सी. ये जो रीजन है इसको शैलो सी बोलते हैं या आप शैलो गल्फ भी बोल सकते हो. एंड इट इज सेड दैट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है. नाउ ऑल द ओशंस, अगर वी क्लब टुगेदर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स ऑफ ऑल द ओशंस इन द वर्ल्ड, ठीक है, देन दे टुगेदर कवर 7.5% ऑफ द टोटल एरिया, 7.5% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ ओशंस. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. यानी कि इफ वी क्लब अप और वी accumulate the continental shelf of every ocean in this world, it is just 7.5% of the total area of ocean, because continental shelf is the beginning part of the ocean. ओशन का जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टार्टिंग पार्ट होता है ना, वो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है. इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है, ज़्यादा एरिया नहीं होता, जस्ट अ सीवर्ड एक्सटेंशन, ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्दर मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देखो दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. Now when it is further moving, ठीक है, you can see that the shelf typically ends at a very steep slope. यहाँ आप देखोगे बहुत ही steep slope है, ठीक है, this is the steep slope, ठीक है. And this steep slope is known as the shelf break. ये जो एरिया है ना, ये एरिया it is known as the shelf break. From where the continental slope starts, जहाँ से जिसके बाद continental slope आपका स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले का जो ब्रेक एरिया है that is the shelf break. ठीक है, पॉइंट क्लियर. नाउ वी नो दैट यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर आपके सारे डिपोजिशन होते हैं. ऑल द डिपोजिशंस दे गेट एक्यूमुलेटेड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है. दैट इज वाई ऑल दी थिंग्स दैट यू थ्रो इन द ओशन दे आर डिपॉजिटेड ओवर हियर. आप जो भी चीज़ें ओशन में फेंकते हो ना, कोस्टल एरिया में पोल्यूशन करते हो, वो सारा कुछ कॉन्टिनेंटल शेल्फ में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है. एंड इवन द रिवर्स, ग्लेशियर्स फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो दे ब्रिंग देयर डिपोजिशन. बाकी की रिवर्स जो होती हैं, जो ओशन में मर्ज होती हैं, या ग्लेशियर्स होते हैं जो मेल्ट डाउन होते हैं, वो अपना सारा डिपोजिशन लाकर यहीं इकट्ठा करते हैं, ठीक है. सो हियर इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया यू विल फाइंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स. यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं. द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स कैन बी सीन इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया. हेयर मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स कैन बी फाउंड, ठीक है. सो इफ इन प्रीलिम्स द क्वेश्चन कम्स दैट मैसिव डिपॉजिट्स और कॉन्टिनेंटल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ओशनिक रिलीफ, इट इज फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया, ठीक है. नॉट इन कॉन्टिनेंटल स्लोप, नॉट इन द एबिस, नॉट इन द सी माउंट और ट्रेंच,
it is found in the continental shelf. ठीक है. Now when we talk about the formation, जब हम बात करते हैं formation की, so how this continental shelf is formed? It is formed by 3 ways. 3 तरीके हैं जिस तरीके से ये continental shelf बनेगा. First way is known as, write it down, submergence of a part of continent. This is the first way. जब continent का, this is the continent, when a part of continent submerges into the sea or the ocean, then we find continental shelf. जब water level बढ़ जाता है, when the water level is high or the part of continent is weak, then it breaks down, it gets submerged into the in the oceanic region, so that forms the continental shelf. Second is relative rise in sea level. I told you this, जब sea level बढ़ता है तो एक हिस्सा continent का starting का जो हिस्सा है वो automatically oceans के अंडर आ जाता है. And third is known as, third reason is the sedimentary deposits brought down by rivers. ठीक है. When the sedimentary deposits get deposited in on the part of continental region, it gets submerged into the sea. जब sedimentary deposits rivers लेकर आती हैं oceans में merge होने के बाद, उसकी वजह से एक part जो है continent का वो नीचे धंस जाता है. Automatically it becomes weak and it comes down. So it is covered by the oceanic body. So that is why we get the continental shelf. These are the 3 ways through which the continental shelf can be formed. And all of these 3 ways are important for your coming prelims. ये आपके प्रीलिम्स के लिए रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक है, बट प्रीलिम्स में 100% क्वेश्चन कैन कम. दे कैन गिव यू 3 स्टेटमेंट्स, देन दे विल आस्क यू विच वन ऑफ देम इज करेक्ट और विच वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? प्लीज लेट मी नो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द विड्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ओके, इसकी विड्थ क्या होती है? So its width is 70 to 80 kilometer. ठीक है. The average width, you can write it down, the average width of the continental shelf is 70 to 80 kilometer. And when there is you can say shelves, the oceans where the shelves are almost absent or they are very narrow, in that case there is a high chance of floods. ठीक है. जिस केस में, जिस कोस्टल एरिया में कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स बहुत ही नैरो है या एब्सेंट है ही नहीं, तो उस केस में कॉन्टिनेंट के साथ सेम लेवल पे होता है ओशन. इन दैट केस द कॉन्टिनेंट इज एट द सेम लेवल विद द ओशन वेयर द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर एब्सेंट. इन दैट केस द एरिया अराउंड दैट बॉडी, वाटर बॉडी, इज वेरी डेंजरस टू इनहैबिट. ठीक है. तो उसमें काफ़ी खतरा हो जाता है क्योंकि सेम लेवल पे है, फ्लडिंग का खतरा होता है. इट इज़ वेरी हाई. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द साइबेरियन शेल्फ. इन द साइबेरियन शेल्फ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ऑलमोस्ट वेरी नैरो, मतलब समझ लो एब्सेंट ही है, इतना नैरो है कि एब्सेंट ही माना जाता है. ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं, डेप्थ की तरफ बढ़ते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ. नाउ डेप्थ इसका ऑलमोस्ट 30 मीटर रहता है बिकॉज इट्स वेरी शैलो, सो इट इज़ 30 मीटर, बट इन सम केसेज इट कैन बी 600 मीटर्स ऑल्सो. सो इट इज़ बिटवीन 30 to 600 मीटर. इन दोनों नंबर्स के बीच में इसकी डेप्थ रहती है. Now another point of continental shelf that they can ask you is, what is the importance of having continental shelf? Continental shelf होने के फायदे क्या हो सकते हैं? How can a human being can take advantage of continental shelf, or how it is useful for the marine life? पानी के नीचे जितनी भी marine life है, fish, whales, जितने भी हैं ecosystem है, उनके लिए क्या help है और हमारे लिए क्या help है? ठीक है. दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स? यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या होती है? सो ओवर हियर व्हाट इज द एडवांटेज और वी कैन से द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ. सो फर्स्ट एडवांटेज इज दैट द मरीन फूड comes almost entirely from the continental shelves, from CS continental shelves, because all the fishes they are near to the continental shelf. जितनी भी small little fish होती हैं वो सारी continental shelf के आसपास होती हैं. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो मरीन फूड कम्स फ्रॉम हियर.
ठीक है। प्लस वी ऑल्सो थ्रो ऑल द इम्पॉर्टेंट यू कैन से फिश फूड, जो भी हम जैसे कोस्टल एरिया में घूमते हैं तो जो भी फिश फूड हम वहाँ पर फेंकते हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही आता है, ठीक है। प्लस ह्यूमन बींग्स के लिए मरीन लाइफ यहीं से मिलती है, बिकॉज स्मॉल फिशेज ऑफ द ओशन दे डू नॉट डाइव डीप इनटू द ओशन, यहाँ नहीं पाई जाती हैं स्मॉल फिशेज। द स्मॉल फिशेज आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप एरिया, सो इट्स अ बेस्ट फिशिंग जोन फॉर अस, हमारे लिए काफ़ी बढ़िया फिशिंग जोन होता है ये। प्लस बिकॉज सनलाइट इज डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इन द डीप लेयर ऑफ द ओशन सनलाइट कैन नेवर पेनिट्रेट, ठीक है, इट कैन बी फाउंड इन द अपर लेयर ओनली। सो ओवर हेयर वी हैव ऑल द मिनरल्स, यहाँ पर सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं। ऑल द ओशनिक प्लांट्स, जो आपकी वाटर प्लांट्स होते हैं ये भी यही मिलते हैं, ठीक है। ऑल द वाटर प्लांट्स आर ऑल्सो फाउंड ओवर हेयर। सो सेकेंड रीजन कैन बी दैट दे प्रोवाइड, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्रोवाइड रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़िया फिशिंग ग्राउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड आई टोल्ड यू प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स, ठीक है। सो दे आर द पोटेंशियल साइट्स फॉर इकोनॉमिक मिनरल्स, इकोनॉमिक मिनरल्स की ये पोटेंशियल साइट्स में से एक माने जाते हैं, ठीक है। यू कैन से दैट 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, जो पूरी दुनिया का पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है ना, उसका 20% यहीं से आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से। राइट इट डाउन, 20% ऑफ वर्ल्ड्स पेट्रोलियम production, it comes from here only, from the continental shelf only, and there are many you can say nodules which are found over here. आपने polymetallic nodules के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो polymetallic nodules, manganese nodules, iron nodules, ठीक है, manganese hydroxide, all of them are found in continental shelf. तो आप लिख सकते हो, you can write the products which are found over here. We get manganese hydroxide, हमें यहाँ से मैंगनीज हाइड्रोक्साइड मिलता है। वी गेट आयरन मिनरल मेटल्स ओवर हेयर, ठीक है, आयरन रिच मेटल्स वी फाउंड ओवर हेयर। देन वी फाइंड पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स न्यूज़ में भी था। वी आर साइनिंग अ डील with many agencies, especially with IOC, to extract polymetallic nodules from the oceanic continental shelf region, ठीक है। तो यहाँ से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी मिलेंगे, मैंगनीज नोड्यूल्स भी मिलेंगे, आयरन भी मिलेगा, पेट्रोलियम तो मिल ही रहा है। सो दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ मिनरल ओर्स। ये सारे जो सोर्सेज है ना, ये आपके मिनरल ओर्स के बहुत ही रिच सोर्सेज हैं, ठीक है, क्लियर। इवन कॉपर इज फाउंड ओवर हेयर, यहाँ से आप कॉपर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यू कैन एक्सट्रैक्ट आयरन कॉपर फ्रॉम हेयर, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये आपकी पूरी चर्चा हो गई कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब हम कॉन्टिनेंटल स्लोप से शुरू करेंगे। दिस इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप। नाउ द एरिया between the continental shelf and continental slope is also known as, जल्दी से बताओ क्या पढ़ा था हमने, what is that break between continental slope and continental shelf? It is known as, yes, very good, it is known as shelf break। अभी पढ़ा था जस्ट हमने, इसको हम shelf break बोलते हैं, ठीक है। दिस इज shelf break, always remember। अभी हमने 2 स्लाइड्स पहले ही ये पढ़ा है, 2 स्लाइड्स, ये नहीं कि 2-3 क्लास का गैप हो गया हो, ठीक है, तो थोड़ा अटेंशन दीजिए। सो दिस एरिया इज नोन एज शेल्फ ब्रेक एंड दिस इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप कंटेन्स द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑल्सो एंड द ओशन बेसिन ऑल्सो। ये बीच का पार्ट है, जितने भी आपके ओशनिक बेसिन्स है, ऊपर से ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप का ही पार्ट है, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप ओनली। एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइट इट डाउन, it begins where the bottom of the continental shelf sharply drops off, ठीक है, into a steep edge। जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू होता है। एंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप? अब इसका डेप्थ क्या होता है ये भी पढ़ना जरूरी है। सो डेप्थ ऑफ दिस स्लोप लाइज बिटवीन 200 to 300 मीटर, 3000 मीटर सॉरी, ठीक है, 200 से 3000 मीटर तक की इसकी डेप्थ होती है, गहराई होती है। एंड द सीवर्ड एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप, दैट मीन्स दिस एज,
जो which is further extending towards the sea, this is known as the, write it down, the seaward, it is known as the seaward edge. ठीक है, इसको सीवर्ड एज बोलेंगे. सो दिस सीवर्ड एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, दिस गिव्स राइज टू कॉन्टिनेंटल राइज. ठीक है, ये जो एरिया है ना जो नीचे राइज कर रहा है सी की तरफ, इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज. दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल राइज. सो दिस रीजन, ये जो है इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो. दिस इज द बेसिक डायग्राम थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कॉन्टिनेंटल राइज. देखो, दिस इज द कॉन्टिनेंटल स्लोप. ठीक है, बट नाउ द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज नाउ राइजिंग फर्दर इनटू द सी. इट इज एक्सटेंडिंग फर्दर इनटू द सी. ठीक है, यहाँ पर ये सी की तरफ फर्दर एक्सटेंड हो रहा है. सो दिस पोजीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटल राइज. और इसका डेप्थ जो होता है कॉन्टिनेंटल राइज का, इट ग्रेजुअली एक्सटेंड्स इनटू द फर्दर स्टीपनेस. अब देखो, ये कॉन्टिनेंटल राइज है, जब ये धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, ये धीरे धीरे फिर से झुकने लगता है. फर्स्ट इट ग्रेजुअली राइजेस, देन अगेन इट लूजेज इट्स स्टीप इनटू द एबिसल प्लेन. ठीक है, पर ये होता क्यों है? व्हाई इट हैपेंस, व्हाई इट लूजेज इट्स स्टीप्स? बिकॉज ऑफ द डेप्थ ऑफ द ओशन. ओशन के डेप्थ की तरफ से, डेप्थ की वजह से इसका जो स्टीपनेस है वो धीरे धीरे घटने लगता है. तो यहाँ पर आप देखोगे, व्हेन द कॉन्टिनेंटल राइज लूजेस इट्स स्टीपनेस, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एबिसल प्लेन. ये एबिसल प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, एबिसल प्लेन इज द फर्म प्लेन विच इज फाउंड इन द ओशनिक रीजन जस्ट आफ्टर द कॉन्टिनेंटल राइज. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? तो जब हम कॉन्टिनेंटल राइज की बात करते हैं, आप यहाँ पर देखोगे कॉन्टिनेंटल स्लोप की जो बाउंड्री है वो क्या आपको समझाती है? ये जो बाउंड्रीज हैं ये आपको क्या दिखाती हैं? दिस डिटरमाइंस द एंड ऑफ द एज ऑफ कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट के जो एज होता है वो खत्म हो रहा है. यहाँ पर ये बाउंड्रीज वही दर्शा रही हैं. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इट इज एंडिंग टुवर्ड्स द एबिसल प्लेन. नाउ दे आर फर्दर एक्सटेंडिंग इनटू द ओशन and getting converted into different physical features of the ocean. यहाँ तक तो आपने इसको continental नाम दे दिया. Till this plane you gave it the name of continental because it was coming out of the continent. Now after the break in the continental features, ठीक है, जब ब्रेक हो जाता है यहाँ कर एबिसल प्लेन पे ब्रेक हो गया, in the abyssal plane there has been a deep break. So now from here will start the real oceanic features. यहाँ से अब oceanic features start होंगे जिनको हम real oceanic features बोलते हैं. After the oceanic trench you will find the volcanic island, then you will find the mid ocean ridge, you will find guyutes, seamounts. Now they will not be named after continents. अब उनको continents के नाम पर नेम नहीं किया जाएगा. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? प्लीज लेट मी नो इफ दिस मच इज क्लियर. जब हम ओशनिक ट्रेंच की बात करते हैं ना, दिस रीजन, दिस इज अ डार्क डीप फॉल्ट इन द ओशन. इट इज ऑल्सो नोन एज डिप्रेशन. इसको हम डिप्रेशन भी बोलते हैं. डिप्रेशन आर दी फॉल्ट्स विच आर क्रिएटेड, डीप फॉल्ट्स, नैरो फॉल्ट्स विच आर क्रिएटेड इनटू द ओशन. दीज एरियाज आर दी डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशन. फॉर एग्जाम्पल द मरियाना ट्रेंच, अगर आपने मरियाना ट्रेंच का नाम सुना है, ठीक है, दीज आर द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ द ओशंस. ठीक है, एंड सनलाइट कैन नॉट रीच दिस एरिया. ठीक है, सनलाइट जो है वो आपके इस एरिया तक रहेगा. आफ्टर दैट इट कैन नॉट रीच इनटू द ओशनिक ट्रेंच. तो यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब्ड रहता है. नो मेजर इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल फीचर कैन बी फाउंड इन दिस रीजन. यहाँ पर ज़्यादा आपको इकोलॉजिकल लाइफ नहीं दिखेगी because sun rays they cannot leave they cannot reach the deepest portion of this part of the ocean. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से बताएं. there is one more relief which is known as canyons. So this is the basic diagram of submarine canyons that we are going to study. ये basic diagram है. This region is known as the submarine canyon. ठीक है, now what is a canyon? ये canyon होता क्या है? Canyon is a, write it down, it is a deep gorge. It is a deep gorge, specially one with a river flowing through it. One with a river flowing through it. ठीक है, एक डीप दरार होती है, डीप नैरो पाथ होता है जिसके थ्रू रिवर जो है वो बहती है, उसे हम कैनियन बोलते हैं.
सो दिस एरिया, देखो आप देखोगे ना, इट्स अ डीप गॉर्ज, बहुत ही डीप फॉल्ट है, डिप्रेशन है इन द ओशनिक रीजन थ्रू विच अ रिवर इज फ्लोइंग। देखो द रिवर इज फ्लोइंग एंड मर्जिंग इनटू द ओशन थ्रू दिस गॉर्ज ओनली। जो रिवर है वो इसी गॉर्ज के थ्रू ओशन में मर्ज कर रही है। सो दिस इज नोन एज कैनियन, इसको हम कैनियन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज अ गोर्ज? अब इस गोर्ज का मतलब क्या होता है? ठीक है, गोर्ज इज अ वेरी स्टीप, इट इज अ वेरी नैरो, वेरी स्टीप, वेरी नैरो वैली, ठीक है, और यू कैन कॉल इट अ रिवरीन। इसको आप वैली भी बोल सकते हो, रिवरीन भी बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी गोर्ज इन ब्रह्मपुत्र वैली एज वेल। ब्रह्मपुत्र वैली में भी हमें गोर्ज देखने को मिलती है, वंस इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल वी सी द गोर्ज, राइट। अब वैली क्या होता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज अ वैली? वी हैव हर्ड अबाउट वैलीज अ लॉट, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ वैली? Write it down. It is a low area. This definition is very important. It is a low area between the hills, or you can say between the mountains. Hills और mountains के बीच में ये एक low area है, और you can call it a depression as well. आप इसको एक दरार भी बोल सकते हो, depression भी बोल सकते हो, which is typically a river, which is typically a river or a stream flowing through it. ठीक है, so this is a valley, a depression through which a river or a stream flows. ठीक है, उसको हम valley बोलेंगे. So this is a valley. देखोगे these are two landforms और land masses. ठीक है, ये क्या हो गया? ये दो माउंटेन्स या हिल्स हो गए, इनके बीच में थी दिस इज द वैली, यह आपकी वैली हो जाती है. ठीक है, सो इट इज अ डिप्रेशन. आई टोल्ड यू इट्स अ डिप्रेशन through which the river or the oceanic water is flowing through. ठीक है, and you can see this is the area between hills or mountains. ठीक है, तो ये होता है आपका वैली. जैसे कि यस, नर्मदा रिवर वैली भी बोल सकते हो आप. यस, इट्स लाइक अ कैविटी. ठीक है, तो कैनियन में आपके पास हडसन कैनियन हो जाता है. हडसन कैनियन इज द वेल नोन कैनियन इन द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में सबसे फेमस कैनियन है हडसन कैनियन. ठीक है, देन वी हैव ट्रेंचेस में मरियाना ट्रेंच हो गया. वैलीज वी हैव स्टडीड, ब्रह्मपुत्र गोर्ज वी हैव स्टडीड. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ओशनिक रिलीफ. ओके, now we are going to start with the atmospheric circulation. It is the most important topic when it comes to your prelims and mains GS paper 1. Okay, and very scientifically typical. तो ये काफ़ी थोड़ा technical topic है, तो ध्यान से इस topic को पढ़ना है. We have to study this topic with full attention. So before we move forward, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी announcement है. Here's a small announcement for all of you before we move forward, that from 25th of Jan, Unacademy is launching new batches for UPSC CSE 2021, 22 and 23 aspirants. आप लोगों के लिए नए batches launch हो रहे हैं 25th January से. So we have 6-month batches also. ठीक है, starting from 25th of Jan. We have complete 1-year GS batch course as well, and also we have 2-year GS batch courses. ठीक है, and all these courses are starting from 25th of Jan. We have also started NCERT batches from class 6th to class 12th. ठीक है, एंड बैचेस का मेजर एडवांटेज ये है कि ये जो बैचेस है ये हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है. दी बैचेस आर इन बोथ हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल बैचेस. ठीक है, लैंग्वेज. सो वी हैव 3 बैचेस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. सेम कोर्स में 3 बैचेस हैं. ठीक है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू विल बी गेटिंग योर फुल प्रीलिम्स एंड मेंस syllabus coverage. Study material will be provided to you. There will be doubt clearing sessions also. Then we have live classes by top educators, prelims test series, evaluation, interview preparation, everything in the batches will be done. Okay, so if you are interested in these batches, अगर आप interested हो तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हो Sharma20 to get 10% discount in these batches. ठीक है, सो ये जो बैचेस हैं इस पे सब आपको 10% अगर डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज़ दिस कोड Sharma20. ठीक है, सो आई हैव गिवन यू द लिंक ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आप देखोगे कमेंट सेक्शन में लिंक भी है. आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज 25th से ये स्टार्ट हो रहा है. 3 डेज है आपके पास. ठीक है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू एंजॉय द लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट सब्सक्राइबिंग टू दिस बैच. ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से स्टार्ट करते हैं. सो एज यू कैन सी इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव कवर्ड चैप्टर नंबर 9. दिस इज चैप्टर नंबर 10 दैट वी आर कवरिंग.
हमने लास्ट कुछ क्लासेस में चैप्टर 9 डिटेल में पढ़ा था. वी स्टडीड अबाउट सोलर रेडिएशन, वी स्टडीड अबाउट हीट बजट, heat balance, temperature also, and we answered certain questions. For example, we answered the question how temperature is distributed over the surface of earth because of the different layers, presence of different layers of the atmosphere. Then we also studied about the difference between equator and north pole and south pole, because of which the temperature differs. We also studied what are the causes behind temperature variation on earth. We studied what causes low pressure and high pressure system. हमने LP और high pressure system पढ़ा था. जहाँ पर warm area होता है वहाँ पर pressure low होता है कि high होता है. In the warm areas pressure is low, right? But temperature is high. Temperature high होता है. And as we move from the equator towards the north pole, जब हम equator से north pole की तरफ जाते हैं pressure low हो जाता है, pressure falls, temperature also falls. ठीक है. Then how wind moves from one place to another, and what happens when warm air intersects with cool air. These were the questions that we discussed in the previous 7 classes. Last की जो 7 classes हमने conduct की हैं उसमें यही questions सारे discuss किए हैं हमने. ठीक है, in detail. Now we are going to start with atmospheric circulation. अब हम शुरू करने वाले हैं atmospheric circulation and weather system से. Now all these PDFs will be uploaded on the Telegram channel. ये सारे जो handmade notes है ना, these creative handmade notes, they will be uploaded on the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है, but let us first understand what is atmospheric circulation. When we talk about atmospheric circulation, we know in this topic we need to understand atmospheric pressure. जब हम circulation की बात करते हैं, देखो air circulation, climate, weather system, it all is a part of atmospheric circulation. Okay, but in atmospheric circulation we need to understand what is atmospheric pressure. ये atmospheric pressure क्या होता है? So here this image everybody can see. ये image सब देख सकते हैं. This figure everybody can see, right? In this figure you can see this is the earth. आप देख सकते हो ये है earth. ठीक है, and we have the atmospheric layer over here. ये आपका atmosphere हो गया, bluish color region. And we see that atmosphere it exerts pressure on the earth. Atmosphere जो है वो earth पे pressure exert करता है. Why? I told you in the previous lectures. Because of gravity. Because of presence of gravity, the atmosphere exerts pressure on the earth. ठीक है, ग्रेविटी के कारण यहाँ पर प्रेशर बन रहा है. ठीक है, सो इट इज द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर कंटेन्ड इन अ यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एटमॉस्फेयर इज अ लेमेन्स डेफिनेशन. अगर आपसे क्वेश्चन मेंस में पूछ लिया जाए तो आप ये बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं लिखोगे. ठीक है, समझ आ रही है बात? सो इफ इन मेंस इट इज आस्क्ड और इफ इन प्रीलिम्स the question comes, it will be in the form of a technical definition. So I have made you understand the normal simple meaning of atmospheric pressure. It is the pressure exerted by weight of atmosphere due to gravity. Gravity की वजह से होता है. ठीक है, now the technical definition is here. ये आपकी technical definition. The weight of column of air, this is the column of air. ये जो है ये ब्लूइश रीजन कॉलम ऑफ एयर है, कंटेन्ड इन अ यूनिट एरिया फ्रॉम मीन सी लेवल टू टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर. दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड इन विच यूनिट इट इज एक्सप्रेस्ड. कौन से यूनिट में इसको एक्सप्रेस किया जाता है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीबार एंड पास्कल्स. अब अगर आपके पास ओल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी है उसमें आपका पास्कल वर्ड नहीं एडेड होगा. न्यू ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पास्कल वर्ड एडेड होगा. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू स्टडी द न्यू ज्योग्राफी एनसीईआरटी. ओके, because it is updated. So it is expressed in terms of millibar and pascals and it is widely used unit in the kilopascal. इसकी जो widely used unit है वो kilopascal होती है, which is expressed as HPA. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. अब यहाँ पर आप देखोगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एयर एट द सरफेस, दिस इज द सरफेस रीजन. ये आपका सरफेस कॉन्टिनेंटल रीजन हो गया. एंड द एयर एट द सरफेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इज वेरी डेंसर. ठीक है, बहुत डेंस होती है यहाँ पर. सो दैट इज वाई वी हैव हाई प्रेशर रीजन near the surface of the earth. We have high pressure region. Why? Because of the denseness of the air or denser air which happens due to gravity only. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. तो जब हम एयर प्रेशर की बात करते हैं, वी हैव अंडरस्टूड द
units in which it is measured. So air pressure, it is measured with the help of mercury barometer. एक मर्क्यूरी बैरोमीटर है जिसके हेल्प से इसको हम मेजर करते हैं. सो बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एयर प्रेशर. इट इज ऑल्सो नोन एज एनेरॉइड बैरोमीटर. या तो आप मर्क्यूरी बैरोमीटर से मेजर कर सकते हो प्रेशर को, या एनेरॉइड बैरोमीटर से मेजर कर सकते हो. एंड वी हैव अंडरस्टूड दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट एंड ऑल्टीट्यूड. ओवर हियर यू कैन सी द हाइट इज इंक्रीजिंग, हाइट इंक्रीज हो रहा है, सो इट इज डिक्रीजिंग. प्रेशर एंड टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. Initially it is high, but as the altitude goes up with height, the pressure and temperature decreases. So this is again very important point for your prelims. ठीक है, तो हाइट के साथ, ऑल्टीट्यूड के साथ आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है. और हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? एब्सोल्यूट और रिलेटिव एयर प्रेशर. याद है सबको या नहीं याद है? जल्दी से बताओ. वी अंडरस्टूड एंड वी स्टडीड द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव प्रेशर इन द लास्ट क्लास. ठीक है, बिल्कुल जस्ट लास्ट क्लास में ही पढ़ा है. सो वी हैव अंडरस्टूड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स ऑल्सो. सो दैट इज वाई वी डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर इन द लास्ट क्लास. इसीलिए हमने डिस्कस किया था ताकि आपको अभी कोई टेंशन ना हो समझने में. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर. देन वी विल स्टडी हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑल्सो. अब वर्टिकल वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जो एयर प्रेशर होता है वर्टिकली किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो वर्टिकल वेरिएशन मीन्स वेरिएशन ऑफ प्रेशर व्हाइल ग्रोइंग अप. दिस इज द वर्टिकल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल. कुछ बच्चों को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन समझने में दिक्कत होती है. दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्टिकल, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल. ओके, so vertical means when the air rises up, the study of pressure as the air rises up, it is the vertical distribution. ठीक है, so in the lower atmosphere, now what is the lower atmosphere? Over here we have the lower atmosphere, that is the troposphere. ठीक है, ये हो जाता है आपका lower atmospheric region, and the higher atmospheric region is known as, the higher atmospheric region is known as exosphere. ये हो जाता है आपका higher one. ठीक है, this is the higher, this is the lower. So in the lower troposphere or the atmospheric region, the pressure decreases rapidly with height. I told you that as we go up, the pressure and temperature decreases. So as we go up, the pressure and temperature decreases. तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं pressure और temperature decrease होता जाता है. ठीक है, so over here the top of troposphere, that is this portion, ये जो portion है troposphere का, these are the different layers of atmosphere. So the top portion is cold because here we have all the water vapor, the rainy activities, they are going on over here, clouds, dust particles, all of them can be found in this region. ठीक है, that is why this region is the coldest. इस region को काफी ठंडा region माना जाता है. ठीक है, and when we move up beyond the troposphere, the further pressure and temperature starts falling down. This is the vertical variation of pressure. जैसे जैसे ऊपर जाओगे temperature गिरता जाएगा. Now what is the horizontal distribution of pressure? अब pressure का horizontal distribution किस तरीके से होता है ये समझ लेते हैं. So when we talk about horizontal distribution, it means the side movement of air. इसका मतलब होता है air का side movement. ठीक है, horizontal movement. So when the wind moves horizontally with speed, they exert pressure. Speed होती है, देखो, when they are moving horizontally, there is extra speed that they are exerting to move in this position, and that is why the pressure is exerted. इसीलिए यहाँ पर pressure exert किया जाता है and pressure is high. यहाँ पर pressure ज़्यादा होता है, high pressure होता है. So this is known as horizontal distribution of pressure. We find high pressure when horizontal movement of wind is happening. ठीक है, now we can study the horizontal distribution of pressure by the way of isobars. हम isobars की फॉर्म में ही इसको समझ सकते हैं. ठीक है, we have so far studied that when the wind is moving horizontally, the speed is high. Speed high होती है, so the pressure is also high. ठीक है, when the pressure is high, the pressure exerted is also high. ठीक है, प्रेशर भी बढ़ता है और प्रेशर एक्सर्ट भी ज़्यादा होता है, एंड दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर. नाउ इट कैन बी स्टडीड बाय द वे ऑफ आइसोबार्स. आइसोबार्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर को पढ़ सकते हैं. नाउ व्हाट इज आइसोबार? As you can see in the image, these are isobars. These are the lines connecting the places having equal atmospheric pressure. These places which have equal atmospheric pressures, the line which connects these points is known as isobar. वो line जो कि
इन प्लेसेस को कनेक्ट करती है, जिनके पास सेम इक्वल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको हम आइसोबार बोलते हैं. दैट इज नोन एज आइसोबार. आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसो मीन्स इक्वल एंड बार मीन्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल देम आइसोबार, इसलिए हम इनको आइसोबार बोलते हैं. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है. एंड दीज आइसोबार्स दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम पढ़ते हैं तो हम विंड की स्पीड को भी मेजर करते हैं और उसकी डायरेक्शन भी पढ़ते हैं. व्हेन वी आर कनेक्टिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ हैविंग सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, वी आर ऑल्सो स्टडिंग द स्पीड ऑफ द विंड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड. कहाँ कहाँ विंड मूव कर रही है, कहाँ क्या उसकी स्पीड है, दैट इज ऑल्सो मेजर्ड इन द आइसोबार. नाउ देर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोथर्म. एक और कॉन्सेप्ट होता है आइसोथर्म का. आइसोथर्म मीन्स लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर. ठीक है, इफ दीज प्लेसेस आर हैविंग इक्वल टेम्परेचर, सो द लाइन विच इज कनेक्टिंग देम इट इज नोन एज आइसोथर्म. उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं. आइसो मीन्स इक्वल, थर्म मीन्स टेम्परेचर. ठीक है, so that is why when we see at the different isobars we have different regions. We have low pressure regions, we have high pressure regions. जहाँ पर low आप बोलते हो आइसोबार का जो कैलकुलेशन है वो लो आता है, द नंबर ऑफ आइसोबार और द मेजरमेंट ऑफ आइसोबार. इफ इट इज लो दैट मीन्स इट्स अ लो प्रेशर जोन, इफ इट इज हाई दैट मीन्स वी हैव हाई प्रेशर जोन्स. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक. नाउ वी हैव अंडरस्टूड द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर. We have understood the horizontal distribution also. Now we have to study the world distribution of sea level pressure. Sea level pressure का जो world distribution है ये पढ़ते हैं. तो देखो sea level जो word है वो क्या होता है. You must have heard about the term sea level, right? What is sea level? The level of sea surface is sea level. Sea level क्या है? ये जो level है sea surface का उसको हम sea level बोलते हैं. This is sea level. ठीक है, इसको हम बोलेंगे sea level. The level in which the continent is coming in at equal position with the sea. ठीक है, that is sea level. ठीक है, so sea level is known as the universal standard. ठीक है, इसको हम universal standard बोलते हैं because this is a standard scale to determine height. The reason, यहाँ पर आप reason देख सकते हो. ठीक है, what is the reason that we calculate everything at the sea level only. इसको यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज यूज टू डिटरमाइन हाइट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर. आप यहाँ से देख सकते हो विद द कॉन्टिनेंट द सी इज एट द सेम पोजिशन. सो फ्रॉम हेयर वी कैन अंडरस्टैंड एंड स्टडी द हाइट ऑफ डिफरेंट फिजियोग्राफिकल फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट की हाइट कहाँ से कैलकुलेट की जाती है? From where Mount Everest heights is calculated? It is calculated from the sea level because continent जो है उसके नीचे sea level के नीचे क्या आ जाएगा? Continental shelf बन जाएगा, वो oceanic body हो जाएगी. If we study the physiographical features at the sea level, we will measure the real portion of physiographical feature. For example, mountain का real portion हम पढ़ेंगे, measure करेंगे. अब जो एरिया कॉन्टिनेंट का पानी के नीचे है वो तो कॉन्टिनेंटल रिलीफ हो जाएगा. द एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट विच इज बियॉन्ड द सी और विच इज बिलो द सी, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ओशनिक रिलीफ. हाउ कैन वी स्टडी दैट एरिया टू मेजर द हाइट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, राइट? वो कॉन्टिनेंट का पार्ट तो होगा नहीं. दैट इज वाई वी यूज द सी लेवल, वो लेवल जहाँ से सी आपकी स्टार्ट हो रही है. ठीक है, सो इट इज यूज्ड, द सी लेवल इज द स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू फिगर आउट द हाइट ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. अब इसी के अंदर there are 3 terms which are mentioned in the NCERT. In this paragraph only 3 terms are mentioned: equatorial low, subtropical highs and subpolar lows. ठीक है, and here the high pressure and low pressure belts are located at different latitudes. इन तीनों levels पर आपके high pressure और low pressure belt जो है वो located है. So now we are going to understand the technicality of equatorial low, subtropical highs and subpolar lows. ये होते क्या हैं अब हम ये समझने वाले हैं. तो अभी आपको attention थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. Now I would request you all to raise your attention so that you can understand the technicality behind these 3 terms. Okay? These are very important for prelims. So as you can see over here, इस structure में आप देख सकते हो we have the earth and we have the sun. And this is the equator region. ये आपका equator region है, this area. This is the northern hemisphere. This is the southern hemisphere. ठीक है, and the sun rays they directly fall on the equator. sun rays जो हैं वो directly equator पे fall करती हैं. ठीक है,
So this region receives the maximum amount of solar radiation और solar energy. ये region जो है वो maximum amount of solar energy और radiation receive करता है. We know that there are typically 2 important months in a year that we studied in lesson number 4 also. Lesson number 4 में पढ़ा था January and July. These are the 2 typical months. 3rd Jan and 4th July पढ़ा था, सबको याद है, aphelion and perihelion. Everybody remembers? ठीक है. So now we studied that there are 2 months in a year that you need to specifically remember, 3rd January and 4th July. Now in the January month we see that northern hemisphere has ongoing winter season. Northern hemisphere में Jan के month में winter season होता है. Why? Because it is inclined away from the sun. इसकी inclination जो है वो sun से दूर है, ठीक है. एंड द सर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन. सो सर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका समर रीजन हो जाता है. इन द नॉर्दर्न, इन द मंथ ऑफ जनवरी वी हैव द विंटर सीजन, ठीक है. बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपोज्ड मोर टू द सनलाइट इन द समर सीजन. सो इन मंथ ऑफ जुलाई वी हैव समर सीजन, ठीक है. नाउ वेदर इट इज जनवरी और वेदर इट इज जुलाई, द सी लेवल प्रेशर एट द इक्वेटर इज ऑलवेज लो, because here we have more amount of sunlight, so there is warmth in this region. जहाँ पर आपकी warm area होता है ना, warm air होता है, वहाँ पर हमेशा याद रखना pressure low होता है, ठीक है. Always remember when there is warm air in a region, the pressure is always low. So here forget about January or July. The countries near the equator or over the equator, they are always having low pressure. यहाँ पर टेम्परेचर आपका हाई रहता है और प्रेशर आपका लो रहता है. आपके इक्वेटर के रीजन में इट इज ऑलवेज लो. सो इट इज नोन एज इक्वेटोरियल लो. इसलिए इस एरिया को हम बोलते हैं, दिस एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो. अब ये पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट इक्वेटर रिसीव्स इंसुलेशन ऑल थ्रू आउट द ईयर, सो देयर इज लो प्रेशर, इट इज नोन एज इक्वेटोरियल लो, ठीक है. इजी था कॉन्सेप्ट. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक इक्वेटोरियल लो में? एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस एरिया? नहीं, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी नो दैट दिस रीजन, इक्वेटर रीजन, इट रिमेन्स वार्म थ्रू आउट द ईयर. सो हियर द एयर इज ऑल्सो वार्मर. यहाँ पर जो एयर होगी वो भी तो गर्म ही रहेगी जब इक्वेटर रीजन ही गर्म है. एंड वी नो दैट वार्म एयर, हमको पता है वार्म एयर इट राइजेज. वी हैव स्टडीड दिस इन द लास्ट क्लास इटसेल्फ. अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ा है हमने. वार्म एयर rises, ठीक है. एंड व्हेन इट राइजेज इट लीड्स टू लो प्रेशर जोन. जब वार्म एयर बढ़ती है ना, ऐसे इंक्रीज होती है हाइट में, द वार्म एयर व्हेन इट राइजेज ओवर हियर इट लीड्स टू दिस जोन इज नोन एज लो प्रेशर जोन. इस जोन को हम बोलेंगे लो प्रेशर जोन. अभी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जल्दी से बताओ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्टिकल पोर्शन ऑफ दिस रीजन. अर्थ के इस रीजन का वर्टिकल पोर्शन इस तरीके से पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द ग्लोब, ठीक है. ये आपका बेसिक डायग्राम है. आई टोल्ड यू दैट दिस इज द सन एंड दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन जो है सोलर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है ना. देर आर 2 सोर्सेज ऑफ रेडिएशन. फर्स्ट इज कोर ऑफ द अर्थ, सेकेंड इज सन, एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी. ओके, सो मोस्ट एनर्जी ऑफ द सन इज गोइंग ऑन द इक्वेटर. इट इज रीचिंग द इक्वेटोरियल जोन एंड दिस एरिया इज वार्म. ये एरिया आपका पूरा गर्म है. सो द एयर इज राइजिंग ओवर एयर. यहाँ पर एयर जो है वो राइज हो रही है, ठीक है. एंड वी नो दैट मेजर पोर्शन ऑफ सन्स एनर्जी रीचेस दिस एरिया, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है. एंड वेरी लीस्ट एनर्जी रीचेस द नॉर्थ और साउथ पोल. बहुत कम एनर्जी है जो नॉर्थ और साउथ पोल में पहुंचती है, ठीक है. एज वी मूव टुवर्ड्स द पोलर रीजन फ्रॉम द इक्वेटर द सोलर एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस. सन की जो एनर्जी है वो भी कम पहुंचती है इन एरियाज में, डायरेक्ट इक्वेटर और ट्रॉपिकल जोन में जाती है. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंड ओवर हियर वी सी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सन्स एनर्जी, ठीक है. नाउ व्हेन द एयर राइजेस, इक्वेटर इज वार्म. यहाँ पर इक्वेटर तो वार्म है, एयर इज राइजिंग. व्हेन द एयर राइजेस इट लीड्स टू द लो प्रेशर जोन. यहाँ पर आपका लो प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो दिस लो प्रेशर जोन, ठीक है, ओवर हियर द टेम्परेचर इज हाई और टेम्परेचर इज लो. यहाँ पर आपका टेम्परेचर हाई होता है कि लो होता है? जल्दी से बताओ. टेम्परेचर इज हाई, ठीक है, एंड प्रेशर इज लो. ये पॉइंट याद रखना है. रिमेंबर दिस. प्रीलिम्स में कंफ्यूज मत हो जाना. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन प्रीलिम्स. ओके, टेम्परेचर इज हाई, प्रेशर इज लो. नाउ दीज एरियाज, ये जो एरियाज है ना,
इन एरियाज को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। दिस एरिया इज नोन एज सब ट्रॉपिकल रीजन और हाई प्रेशर एरिया। वाई हाई प्रेशर? बिकॉज सनलाइट इज नॉट रीचिंग टिल दिस एरिया, यहाँ तक सनलाइट कम हो गई है। नाउ सनलाइट हैज डिक्रीज्ड, इट इज मोर इन इक्वेटोरियल एरिया ओनली। यहाँ आते आते पहुँचते पहुँचते सनलाइट हो गई, घट गई। सो हियर वी हैव हाई प्रेशर एरियाज, यहाँ पर हमारा जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो सब ट्रॉपिकल रीजन्स दे आर ऑल्सो हाई प्रेशर एरियाज, इनको हम हाई प्रेशर एरियाज भी बोलेंगे। एवरीबडी कैन सी दिस, ठीक है। ये एरिया आपका हाई प्रेशर एरिया है। नाउ ओवर हियर वी हैव लो प्रेशर जोन, सो इट इज नोन एज लो प्रेशर बेल्ट ऑल्सो, इसको हम लो प्रेशर बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम ये सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं, दिस इज दी सब ट्रॉपिकल रीजन रिसीविंग मैक्सिमम सनलाइट फ्रॉम दी सन। सो दिस इज अ टाइनी रीजन बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे आपका टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, ठीक है, एंड यहाँ पर प्रेशर लो रहता है। अब बात करते हैं इस रीजन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रीजन। ओवर हियर वी विल फाइंड प्रेशर इज हाई बट टेम्परेचर इज लो। यहाँ पर टेम्परेचर कम है पर प्रेशर हाई है, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इज लेस एंड प्रेशर इज हाई, इट इज नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई। इस रीजन को हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल हाई। जहां पर टेम्परेचर कम है और प्रेशर हाई है, दैट रीजन इज सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। जहां पर आपको ज्यादा हाई प्रेशर एरिया मिलेंगे वहां पर उस एरिया को हम सब ट्रॉपिकल हाई बोलेंगे, ठीक है। सो एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टिल द पोलर रीजन, द टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड द प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर ज्यादा हो जाता है, सो दिस रीजन इज सब पोलर रीजन और सब ट्रॉपिकल हाई। इसको हम सब ट्रॉपिकल हाई रीजन कहेंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? इफ द पॉइंट इज क्लियर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो नाउ दिस इज द वर्टिकल फॉर्म ऑफ अर्थ दैट वी आर स्टडिंग। अर्थ का ये वर्टिकल फॉर्म है। दिस इज द सन दैट वी हैव एंड दीज आर द सोलर एनर्जी, सोलर रेज दैट आर फाउंड फॉलिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ देखोगे बिकॉज ऑफ द सोलर एनर्जी दैट वी आर रिसीविंग, एयर इज वार्म। यहाँ पर एयर वार्म है, दिस इज 0 डिग्री, that is equator region, air is warm. When the air is warm it rises. देखो this is the earth, ठीक है, ये earth है and this is the equator. Here the air is warm, यहाँ पर air जो है काफी warm है because of sun rays, so the air will rise, ठीक है। air ऐसे बढ़ने वाली है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? एयर बढ़ता है तो क्या होता है? व्हेन एयर राइजेस, ठीक है, ओवर एयर ये एयर राइज कर रही है, प्रेशर इज हाई और प्रेशर इज लो, प्रेशर इज लो, लो प्रेशर है, टेम्परेचर इज हाई। वंस द एयर राइजेस, वी नो दैट एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, इट इज कूल। ट्रोपोस्फेयर का जो टॉप पोर्शन होता है वो कूल होता है ना। सो वंस द एयर राइजेस इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, इस तरीके से वो डाइवर्ट होने लगती है। बिकॉज ऑफ द कूलनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इट स्टार्ट्स डाइवर्टिंग लाइक दिस, इस तरीके से ये यू टर्न लेने लगती है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। एंड दिस साइकिल इज नोन एज, ये जो साइकिल है इसको हम हेडले साइकिल बोलते हैं। दिस इज नोन एज द हेडले साइकिल, राइट इट डाउन। when the air rises up and then because of condensation it circulates in this u direction, तो this is the headley cell और headley cycle, इसको हम बोलते हैं हेडले सेल। एंड ओवर हेयर वी सी द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बिकॉज एयर इज वार्म ना, एयर बहुत वार्म है, ठीक है। क्लाउड्स गेट्स हैवी, तो यहाँ पर इवेपोरेशन भी हाई स्पीड में होता है। सो हेयर वी फाइंड द रेन, यहाँ पर आप देखोगे क्लाउड्स बनते हैं, यहाँ रेनी सीजन आपको दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्लाउड्स एंड रेन दे टेक प्लेस इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में आपके रेन्स होते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज द हेडले सेल। नाउ व्हेन द एयर इट मूव्स टुवर्ड्स द पोलर रीजन, जब एयर राइज करके पोलर रीजन में जा रही है, सी इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, सो इट स्टार्ट्स टू सिंक। जो कोल्ड एयर होती है ना वो सिंक करने लगती है, गर्म एयर तो राइज करती है, द हॉट एयर इट राइजेस बट द कोल्ड एयर इट फॉल्स डाउन। तभी आपने देखा होगा जो आइस होती है, द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोजली इन द आइस, बट इन द हॉट वाटर द मॉलिक्यूल्स आर स्प्रेड अनइवनली, दूर होते हैं एक दूसरे से, राइट। सिमिलरली व्हेन द एयर इज वेरी वार्म इट राइजेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। एयर जो गर्म होती है वो राइज करती है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से काफी दूर है। बट व्हेन इट गोज टुवर्ड्स द पोलर रीजन, जब ये पोलर रीजन में जा रही है, पोलर रीजन इज कोल्ड, सो द मॉलिक्यूल्स दे कम टुगेदर, दे गेट पैक्ड टुगेदर एंड हेंस द एयर सिंक्स डाउन। एयर जो है वो नीचे सिंक करने लगती है, सो इट फॉल्स ओवर हेयर इन द ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ देख रहे हो एयर जो है ठंडी जैसे होने लगी, धीरे धीरे नीचे सिंक करने लगी, ठीक है।
अब आप देखोगे यहाँ पर दैट द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोलर रीजन इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द ट्रॉपिकल रीजन। जो कोल्ड एयर है वो पोलर रीजन से निकलकर ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आ रही है, ठीक है। इन द ट्रॉपिकल रीजन वी ऑलरेडी हैव द वार्म एयर, ये आपको रेड एयर दिख रही है ना, रेड साइन, दिस इज द वार्म एयर, द ब्लू साइन इज द cold air. So when the warm air and the cool air converge together, देखो this is the cool air which is coming, this is the warm air which is coming, when they converge together over here turbulence occurs. जब ठंडी हवा और गर्म हवा एक दूसरे से स्ट्राइक करती हैं, क्लैश करती हैं, then turbulence occurs and here this area is highly unstable, highly unsafe for the aviation sector. ऐसे एरिया में आप प्लेन्स को फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द बर्मुडा ट्राइंगल, ठीक है। बर्मुडा ट्राइंगल जो है उसके पीछे, उसकी मिस्ट्री के पीछे एक रीजन ये भी है दैट द कोल्ड एयर एंड द वार्म एयर कन्वर्जेस एट द बर्मुडा ट्राइंगल, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच इट इज अ हाईली टर्बुलेंट एरिया, इसलिए ये काफी टर्बुलेंट एरिया है प्लेन्स के लिए। इट इज वेरी अनसेफ टू फ्लाई इन द अ टर्बुलेंट एरिया। देयर वी फाइंड द कन्वर्जेंस, यहाँ पर हमें कन्वर्जेंस दिखता है एंड द एयर क्लैशेस gives rise to turbulence, disturbance in the atmosphere, then it diverges, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को कि नहीं हो रहा? इफ दिस पॉइंट इज क्लियर तो हेडले सेल समझ आ गया सभी को? एवरीबडी अंडरस्टूड द हेडले सेल? ओके, क्लियर हो गया? चलो, वेरी गुड। सो दिस वॉज टुडेज क्लास, ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास, उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई हो, ठीक है। So class PDF will be uploaded on the Telegram channel. Telegram channel is Simplifying UPSC with Ease. ये है आपका Telegram channel Simplifying UPSC with Ease, ठीक है। यहाँ से क्लास नोट्स मिल जाएंगे आपको and also use this code Sharma20 to cover the all the classes on Unacademy Plus. जितनी भी सब्सक्रिप्शन है उसको कवर करने के लिए आपको कोड यूज करना है Sharma20, ठीक है। क्लियर हो गई बात सबको यहाँ तक? 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट, ठीक है। पॉइंट क्लियर? चलो, सो ये थी आपकी आज की क्लास, दिस वाज टुडेज क्लास। आई होप इट वाज इंजॉयबल, उम्मीद करती हूँ ये इंजॉयबल थी, सबको पसंद आई। एंड ऑल्सो you can subscribe to Unacademy Plus. We have separate NCERT batches on Unacademy Plus. आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक भी मैंने दिया हुआ है। On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.